in an India increasingly divided along religious lines. A fight over this mosque, the city's old. So the BJP's message to them is clear. Vote for us and we'll put your interests first. If Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like language of hatred. It's easy to say. Hello friends and welcome back to the European Yogi channel. इंडिया में रिलीजियस टेंशन्स बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स आज एक बहुत डोमिनेंट टॉपिक बन गई हैं मीडिया में, स्पेशली अगर आप इंडियन मीडिया को फॉलो करो, ऑनलाइन सोशल मीडिया को फॉलो करो. इनफैक्ट वेस्टर्न मीडिया में भी काफ़ी इसकी कवरेज होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. इंडियन गवर्नमेंट को लेबल किया गया है एज हिंदू राइट विंग गवर्नमेंट. आपके हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स आपसे झूठ बोलते हैं, आपके हिस्ट्री टीचर्स भी आपसे झूठ बोलते हैं. I'm sorry, that's the problem with the history textbooks today. Because it teaches you that you're a defeated society. हमारे खुद के रूलर्स, हमारा खुद का रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में हमें कभी कोई चीज़ें क्यों नहीं बताई गई? डोंट समवेयर यू फील कि हमारे इंडियन रूट्स को भुलाने की एक कॉन्स्पिरेसी थी. सोशल मीडिया पे जब भी मैं वीडियोस देखता हूँ इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में व्हेन आई रीड द कमेंट्स लोग लिख रहे हैं कि हमारी स्कूल बुक्स ने तो हमें नहीं पढ़ाया, तो हमें यूट्यूब से सीखना पड़ रहा है. तो मेरे को बहुत सरप्राइजिंग फील होता है कि ये बच्चे, इंडियन बच्चे यूट्यूब पे क्यों आ रहे हैं हिस्ट्री सीखने के लिए, और ये क्यों लिख रहे हैं कि इनकी हिस्ट्री बुक्स इनको झूठ बोल रही हैं. ये बहुत बड़ी एलिगेशन है मेरे हिसाब से. मैंने हिस्ट्री इंडिया में नहीं पढ़ी है, मैं बाहर ग्रो अप किया हूँ, सो मैं इस पर नहीं बात कर सकता. बट दिस इज़ द फीडबैक आई एम गेटिंग फ्रॉम पर्सनल सोर्सेज एंड ऑल्सो ऑनलाइन. पहले ये हम समझते हैं कि हिंदूज़ और हिंदुइज़्म का मतलब क्या है. ये छोटी सी वीडियो हम देखते हैं. Hinduism is old. Hinduism has been around for so long that it and the concept of India itself are inseparable. Hindu and India even come from the same word. Sanskrit was the ancient language of the Hindus, and the Sanskrit name for the Indus River is Sindhu. The ancient Persians who sat across the Indus tended to switch their S's to H's, so Sindhu became Hindu. So the people living across the river became Hindus. Hindus are a diverse group. Some are strict, dedicating their lives to prayer, while others don't believe in any gods but still follow Hindu philosophy. Unlike Christianity or Islam, Hinduism is a non-profit organization. There is no Jesus or Muhammad for Hindus. There is no Bible, Quran, or Torah. Instead, they have a bunch, and I mean a bunch, of different sacred texts. The four Vedas form the basis of the Hindu faith. The term Indianization refers to the cultural exchange between the Indian subcontinent and Southeast Asia brought about when Southeast Asians adopted or imported Indic cultural elements. These include political ideas, literature, language and scripts, art and architecture. तो जैसे हमने देखा कि हिंदुइज़्म एक रिलीजन कम और एक कल्चर ज़्यादा है. कल्चर है वो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं था, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था, क्योंकि इंडियन ट्रेडर्स जो थे उन्होंने शिप्स के साथ वो बाहर गए, उन्होंने ट्रेडिंग की, और इस वहाँ पे वो कंट्रीज़ आज अब कन्वर्ट हो गई हैं, बुद्धिस्ट बन गई हैं या फिर मुस्लिम बन गई हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे हिंदुइज़्म या इंडियन कल्चर के ट्रेसेस मिलते हैं हमें. Thailand, for example, retains many Hindu elements from its kings titled as Rama, or city names like Ayutthaya, named after Ayodhya, to the Garuda emblem and Prambanan Temple and Borobudur Temple of Indonesia and the Angkor Wat Temple of Cambodia are testament to India's civilizational footprints in the region. Indianization did not happen overnight, but was a continuous process that happened over the course of 1,000 years. Malaysia and Indonesia are two separate countries today. In reality, they inhabit a continent of thousands of islands, each with their own language and people, and it seemed like Hinduism would remain the dominant religion in the region. But the Muslims never gave up, and the conversion of just one man to Islam would ultimately lead to the downfall of the newly formed Majapahit Empire. Parameswara accepted the proposal, converting to Islam in 1414 and changed his name to Megat Iskandar Shah. And with the ruling classes now Muslim, most of their people began adopting Islam. And Islam only really spread in great numbers in the 1400s during the collapse of the last great Hindu empire. 25 kilometers south of Kuala Lumpur. Right behind me is the planned city of Putrajaya. Check out the view. And in Putrajaya, they have two great mosques, the Putra Mosque and Tuanku Mizan Mosque. देखिए इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम गरुड़ा एयरलाइंस है. हिंदू धर्म में गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है. ऐसे ही इंडोनेशिया की नेशनल लाइब्रेरी का नाम परपुस्तकान गणेशा है, यानी नेशनल लाइब्रेरी गणेशा. Superhero, what kind of superpowers would you like to have? Apa ya kalau superhero?
Krishna. Karena Krishna itu kalau di Indonesia, khususnya di Jawa itu tetapi juga dia sangat यानी वो अपने आप को मुस्लिम बाय रिलीजन कंसिडर करते हैं लेकिन हिंदू बाय कल्चर, तो वहाँ पे ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जैसे हमने देखा इस वीडियो में कि मलेशिया की जो जुडिशल कैपिटल है उसका नाम ही पुत्रजया है और वहाँ पे एक जो मॉस्क है उसका नाम ही पुत्रा मस्जिद है। सो एक मस्जिद का नाम एक संस्कृत नाम दिया गया है पुत्रा। अब आते हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जहाँ से कल्चर स्टार्ट हुआ था, जहाँ से स्प्रेड आउट हुआ था, और वहाँ पे थोड़ी अलग पिक्चर हमें देखने को मिलती है। पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में ऐसा लिखा जाता है जैसे पाकिस्तान हमेशा से एक मुस्लिम कंट्री थी और मुस्लिम और इस्लाम के अलावा कुछ और था ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोगों ने भी, मुस्लिम्स ने भी हज़ारों साल तक हिंदू टेम्पल्स में प्रे किया है कन्वर्ट होने से पहले। ये देखिए कि पाकिस्तानी हिंदूज़ जो हैं वो खुद ही पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स के बारे में क्या कह रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सोरठ सिंधु है। मेरा नाम प्रहमंगी है। मेरा नाम डॉक्टर राजवंती कुमारी है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं। लिखा था जिन्होंने, उनके हाथ नहीं कांपे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत नाइंसाफी की है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो चलिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में ये वो हिस्ट्री को ठीक से सिखा नहीं रहे हैं, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जो अभी भी जहाँ पे कल्चर फ्लरिश कर रहा है वहाँ पे आप शायद एक्सपेक्ट करोगे कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। उसके बावजूद भी इंडिया में एलिगेशंस आ रही हैं लोगों की, सोशल मीडिया पे और बहुत सारी जगह पे लोग के ओपनली कह रहे हैं कि स्कूल बुक्स जो हैं वो गलत पढ़ा रही हैं। एंड ये शॉकिंग है कि इंडियनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया जो इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो ही नहीं पढ़ाया जाता स्कूल्स में। ये इतनी ऑब्वियस सी चीज़ है कि देखिए, मैं न्यूयॉर्क गया और वहाँ पे मेट म्यूज़ियम है, बहुत फेमस आर्ट म्यूज़ियम, और वहाँ के मेट म्यूज़ियम में एक साउथ ईस्ट एशियन आर्ट की गैलरी है, सेक्शन है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे क्लियरली एक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि साउथ ईस्ट एशिया की आर्ट जो है चाइनीज़ कल्चर से इन्फ्लुएंस हुई है और स्पेशली इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस हुई है, क्योंकि ट्रेडर्स बहुत सारे इंडिया से गए थे। सो यहाँ पे भी इंडियनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की बात की जा रही है। इस सेक्शन में आपको गणेशास मिलेंगे और हिंदू स्टैचूज़ मिलेंगे जो इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम जैसी कंट्रीज़ में। ये बहुत सरप्राइजिंग सी बात है कि एक अमेरिकन म्यूज़ियम 5 मिनट के अंदर आपको इतना कुछ समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है अबाउट द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन एशिया, जो 12 साल में इंडियन स्कूल संभव नहीं कर पा रहे। दूसरी एक एलिगेशन ये बहुत लगती है कि सिर्फ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को ठीक से आप नहीं पढ़ा रहे, बट जो इन्वेजन्स हुई हैं इंडिया में स्पेशली थ्रू मुस्लिम इन्वेडर्स, उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। बड़े हिस्से पर राज किया। उसके साथ साथ काफी हिस्टोरिकल एविडेंस ये भी हमें दिखाता है कि उन्होंने कई मंदिर भी तोड़े, नॉन मुस्लिम्स को धिम्मी यानी सेकंड क्लास सिटीजन्स बनाकर रखा और भारत के कई रिसोर्सेज भी, सारे पैसे फॉरेन देशों में खर्च किए थे। हुआ ये था ना कि जब बाबर को दिल्ली की हुकूमत मिल गई थी तो सबसे पहले बाबर ने दिल्ली के खजाने को लोगों में लुटाना शुरू कर दिया, पर ने खजाना सिर्फ मुसलमानों पर ही लुटाया। जैसे बाबर और औरंगजेब जैसे मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर जजिया टैक्स भी लगाया था, जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर सिर्फ नॉन मुस्लिम्स होने के लिए एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है। इस साल साहिबजादे जोरावर सिंह साहिब और फतेह सिंह साहिब, इनको उसने औरंगजेब ने अलाइव जिन दिया था जस्ट बिकॉज दे रिफ्यूज्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम। आई ऑनेस्टली फील इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। आई फील कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और स्पेशली रिपब्लिक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस से सफ़र कर रही हैं। क्या हमारी अपनी आइडेंटिटी थी और क्या हमें पढ़ाया जा रहा है? हम समझे सबसे पहले कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारे ट्रेडिशंस क्या है, हमारा कल्चर क्या है। और ये कल्चर जो है ये शेयर्ड ट्रेडिशंस है सबके लिए, चाहे कोई मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, वो भी कन्वर्ट होने से पहले इन्हीं ट्रेडिशंस और कल्चर्स को फॉलो करते थे। इसलिए ये जो कल्चर है एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस, ये सबको बिलोंग करते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो एक्चुअली इसको मानते हैं। बोरानी होली में आपका स्वागत छे, यानी बोरा मुस्लिम्स की होली सेलिब्रेशन में आप सबका स्वागत है। ये बोरा मुस्लिम्स की वो कम्युनिटी है जो हिंदू बाबाओं का स्वागत जय श्री राम के नारों से करती है। So India has been land of a Hindu culture. Most of the Indian Muslim like me, we at some point was the Hindu and we have converted our ancestors. So we have to accept that reality, that's it. To be part of the larger Hindu family and I continue to remain a Muslim. And what's wrong with that? Yeah. I love my Eid and I love my Sivai
and I love Holi. I don't know what that makes me, but this is who I am, and I don't see any dissonance and any friction in them. They're continuing to divide you all the time and perpetuate your identity as that of a Muslim and a Muslim alone. But you know, there is nothing Indian or civilizational about it. Actually, I coined a term called Sanatani Musalman. I call myself a Sanatani Musalman, that I believe in Islam faith, but that is not different or exclusive or separate from Sanatan Dharma. So there is no clash. Sanatan, Islam and Hindu, all are, I can maintain all of them together. And being a Muslim, I proudly say that I'm a Hindu, because Hindu is a culture, Hindu is a geographical and a national identity. My dad was a confirmed communist. ठीक है, नाम के वास्ते एथिस्ट थे, ठीक है, बट घर में दुर्गा का मूर्ति होता था, all the pujas had to be done, and you're like, but papa, तुम्ही तो एथिस्ट, doesn't matter, we have to do this puja, all the pujas has to be done, and if it. तो जैसे आपने देखा, काफ़ी मुस्लिम्स भी इस बात को ओपनली मानते हैं कि शायद वो मुस्लिम बाय रिलीजन हैं, बट यू नो दे आर सनातनी, अदरवाइज सनातनी मुस्लिम्स जैसे उन्होंने कहा अपने आप को. सो ऐसे लोगों को ज़्यादा अटेंशन मिलनी चाहिए, इन लोगों को मीडिया में और आगे आना चाहिए. दे शुड बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन माइंडेड लिबरल मुस्लिम सोसाइटी जो अपनी आइडेंटिटी को समझती है. हमें स्कूल में जो गलत चीज़ें हुई हैं हिस्ट्री में उनको भी पढ़ाना चाहिए. अगर किसी इन्वेडर्स ने गलत काम अच्छे काम किए तो उन्हें पढ़ाओ, ताजमहल बनाया, ये सबको बताया जाता है, लेकिन अगर उन्होंने गलत काम किए, मास कन्वर्जन्स की, रिलीजियस परसिक्यूशन की, तो वो भी पढ़ाओ. कई लोगों को लगता है कि नहीं, ये नहीं पढ़ा सकते इंडिया में वरना लड़ाई शुरू हो जाएगी हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के बीच में. तो आई फील ये थोड़ी बैकवर्ड थिंकिंग है, क्योंकि आप मॉडर्न कंट्रीज़ को देखें, यूरोप में जब मैं ग्रो अप किया हूँ तो हमने तो यही देखा है, हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि कैसे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस और कैथोलिक क्रिश्चियंस आपस में लड़ते थे. हमें सिखाया जाता है कि कैसे क्रिश्चियंस और जूज़ के बीच में फाइटिंग रही है, कैसे वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या क्या हुआ है. तो बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स जर्मनी में और सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में बच्चों को सिखाए जाते हैं, टीच किए जाते हैं. और इसका पॉइंट ये नहीं है कि बच्चे रिवेंज लेने की कोशिश करें या फिर उनके अंदर गुस्सा पैदा हो जाए, बट वो मैच्योरिटी डेवलप करें कि चलो वायलेंस हुई, इसको समझे, एंड देन वी मूव ऑन फ्रॉम दिस, और वी मेक श्योर दैट ये फिर से ना हो, चाहे हमारे साथ या किसी और के साथ. ये की लर्निंग पॉइंट है जो एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की निशानी है. तो ये इंडियन सिस्टम में बिल्कुल पूरी तरह से लैकिंग है. बिल्कुल भी मैच्योरिटी बच्चों को नहीं दी जा रही, क्योंकि उनसे बात ही नहीं कर रहे इस टॉपिक के बारे में. बच्चों उसको बात करोगे, उनको अच्छे से एजुकेट करोगे वायलेंस और नेगेटिव चीज़ों के बारे में, तो वो समझ जाएंगे. दे विल गेट द पॉइंट कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें अवॉइड करनी है इन द फ्यूचर. चीज़ों को इग्नोर करना, इन टॉपिक्स को दबाना और इंस्टेड ग्लोरीफाई करना, ये बहुत ही गलत अप्रोच है. इनफैक्ट सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें आजकल बहुत जल्दी एक्सपोज हो रही हैं. जैसे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये गड़बड़ है. ये कभी ना कभी तो होना ही था एक्सपोज, सोशल मीडिया के थ्रू अब हो गया है फाइनली. It is the British who came to India and they proceeded to write their version of India's history, and that's what we have been taught for decades. What we are seeing now is that social media, for good or for bad, for better or for worse, has for the first time in 1,000 years given a voice to the people of India. It's brought people together. So it looks like it's made India a more divided place. It's not so. It's just exposed the fissures that were already present in India. And what we are seeing is that finally young kids are able to get multiple sources of information. इस लॉन्ग वीडियो को अगर हम समराइज़ करते हैं शॉर्टली, तो हमने समझा कि हिंदुइज़्म में एक रिलीजन कम है, एक कल्चर ज़्यादा है, जो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं, लेकिन पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ था. हमने ये देखा कि साउथ ईस्ट एशिया में अभी भी कंट्रीज़ काफ़ी इस कल्चर को क्लोजली फॉलो करती हैं, उसको अपना कल्चर मानती हैं, अपना DNA मानती हैं, जबकि वो एक्चुअली बुद्धिस्ट बन चुकी हैं या मुस्लिम बन चुकी हैं. हमने फिर ये भी देखा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही जो सोर्स है इस कल्चर का, वहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसी कंट्रीज़ में अभी भी बहुत कन्फ्यूजन चल रही है कि आइडेंटिटी को लेके कि क्या हम हैं, क्या हम नहीं हैं, क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन है, नहीं है. सो स्पेशली इंडिया में हमने देखा कि काफ़ी डिस्टॉर्शन की गई है हिस्ट्री की. लोगों की एलिगेशन ये है एटलीस्ट कि ढंग से हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जा रही, और जो कई नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे जिनको हाईलाइट करना चाहिए था उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है. फिर भी अभी काफ़ी लोग हैं इंडिया में जो अब चाहे माइनॉरिटी के हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को समझते हैं, एंड दे नो
कि उनका कल्चर ओरिजिनल कल्चर सनातनी कल्चर है। मेरा इंडियन यूथ से ये अपील होगा कि आप जो हैं, आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी कंट्री को यूनाइट करने की। ऑन वन हैंड यू हैव द पीपल जो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स जो हैं उनसे कुछ उम्मीद नहीं रख सकते आप, वो तो ऐसा करेंगे ही और उनकी पॉपुलेशन को छोटा रखो वरना डेंजर है बाकियों को। तो उनको आप क्लियरली बता दीजिए कि देखिए और मुस्लिम कंट्रीज़ में कितनी ओपनली वो फॉलो कर रहे हैं और हिंदुज़म को और एम्ब्रेस कर रहे हैं, कितने ओपन माइंडेड हैं, टॉलरेंट हैं, वो भी मुस्लिम्स हैं, क्योंकि उन्हें एजुकेट किया गया अपने बारे में। इसलिए अपना गुस्सा आप मुस्लिम्स पे ना निकालिए, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम पे निकालिए जिसने उनको और आपको किसी को भी सिखाया नहीं है अच्छे से कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। एक एजुकेशन सिस्टम जो ये आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा कर रहा है शुरू से ही। और दूसरे लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो एक हिंदुत्व एजेंडा हो रहा है, माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। उन लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि आप एक्नॉलेज कीजिए, आप ये तो सही कह रहे हैं। कई लोग हैं जो डेफिनेटली बदमाशी कर रहे हैं, जो मिसयूज़ कर रहे हैं इस टॉपिक को, लेकिन मेन पॉइंट तो ये है कि हमारी कंट्री एक आइडेंटिटी क्राइसिस में है। तो आप इस पे फोकस कीजिए। आप भी सवाल उठाइए एजुकेशन सिस्टम पे कि लोगों को, माइनॉरिटीज़ को क्यों नहीं एजुकेट किया जा रहा कि ये कल्चर एक्चुअली उनका ही कल्चर है। यहाँ पे राम मंदिर मस्जिद को लेकर इतनी डिबेट हो रही है। मलेशिया में एक मस्जिद का नाम ही एक संस्कृत नाम दिया हुआ है, तो इतना फ़र्क कैसे आ गया मुस्लिम कम्युनिटीज़ में। इंडोनेशिया में लोग खुशी खुशी रामायण कैसे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे लोगों को शायद जय श्री राम से डर लग रहा है, ये कैसे हो गया। तो आपको भी ये सवाल पूछने पड़ेंगे कि ये इतना फ़र्क कैसे आ गया, भारत इतना पीछे कैसे रह गया। हम हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज़ को डेवलप मानते हैं, हम उनको कॉपी करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हमसे कई आगे निकल गई हैं और हमें खुद ही अपना कल्चर इनसे ही समझना पड़ रहा है कि कैसे पूरी सोसाइटी को यूनाइट किया जाए। लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक इंडिया स्टिल हैज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अहेड। मैं यूथ को यही कहूँगा कि एक फैक्ट बेस्ड अप्रोच रखें, आप फैक्ट्स पे फोकस कीजिए और दोनों साइड्स को जोड़िए बीच में। एंड अगर आपका ओपिनियन जो है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड हो, सो दैन दैट डजंट मैटर। ये मत सोचिए कि नहीं ये उनके साथ मेरा सेम ओपिनियन हो गया, अब मैं ये नहीं सोच सकता। आप अपना ओपिनियन बनाइए और आगे चलिए, और अगर कोई ओपिनियन किसी से अलाइंड है दैन सो बी इट। ओपनली एक्सेप्ट करिए एंड से कि अगर यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया है, उसकी जगह मस्जिद बना है तो बना है। हमारी स्कूल बुक्स ये क्यों नहीं बता रही, ये हमें यही रियल प्रॉब्लम तो ये है कि स्कूल बुक्स ये क्यों छुपा रही हैं। जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनको आंसर किया जाए कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो इसको ओपनली देखे। ऐसे ही यूरोप में उन्होंने बहुत सारी सोशल टेंशन्स, पॉलिटिकल टेंशन्स, रिलीजियस टेंशन्स को डिफ्यूज़ किया है, सोसाइटी को हार्मनी में फिर से लाए हैं साथ में। सो दिस इज़ द मॉडर्न लिबरल वे, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैव शोन इट। इंडिया को बस इस रास्ते पे चलना है। दिस इज़ द ओनली वे अकॉर्डिंग टू मी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स टू दिस वीडियो। थैंक यू।